No, sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these so and so's. जयदीप अहलावत, सीमर भाटिया और अगस्त्य नंदा टीम 21 एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए, जहां भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और अन्य भारत के वीरों को याद किया गया। फिल्म के थीम्स अरुण खेतरपाल की वीरता और उनके जीवन को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पर खुलकर चर्चा की। सेरेमनी का सबसे गौरव भरा पल तब रहा जब 21 की टीम ने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ एक खास फोटो सेशन किया, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति और सम्मान की भावना से भर दिया। 21 की कहानी भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल की शहादत और उनकी अद्भुत वीरता को सामने लाती है, जिसे लेकर स्टारकास्ट ने कहा कि ये फिल्म उनकी लेगेसी को नई युग तक पहुंचाने का एक ईमानदार प्रयास है। My journey in this film began actually 7 years back when I first heard the story, and after that in 2019 I went to Chandigarh to Chandi Mandi, and there on December 16th I was called to lay a wreath on Arun Khetarpal's statue there, and there were a whole lot of people there. And when I went there, I don't know, I had already read, I had already met so many people who were associated with him. But when I went there, that particular moment, I made a promise to myself to do this film as good as we can, And I think I wanted Arun to help me, and somewhere he's been there with us throughout this film. It wasn't an easy film to make, and we were shooting all over the country, North India, and it was not easy. But and like any adventure, once it's over, it's great fun, So now that it's over, we're all looking forward to you watching it and reacting to the film. Yeah, so I hope you like it. It's out very soon. In fact, 21 days to go for Ikkis. I thank my friend Bini Padda. 8 years ago, he narrated Arun Khetrapal's story to me, and I couldn't believe it's true. I had the good fortune and the privilege to go to the Pune horses and hear the story from so showed me is what a 21-year-old Indian Army soldier can do. He can disseminate, but he can do things that I couldn't imagine at 21. And we've made this film to show the world what a 21-year-old Indian Army soldier can do. And thank you for that. It's affected us in so many ways, and we're very proud of it. In 20 years of our filmography, it is the best film we've made, and we can't wait to share it with you. Everybody here, Jaideep, Simar, Agastya has lived this life. He'll tell you a lot more about it. And thank you for this story, and thank you for letting us make this film. It's affected us in such a beautiful manner that whenever we put the film on, we can't stop watching it. And I hope that happens with all of you. I can't wait for the next 21 days to get over and show this film, and we will show you the film before we show anyone else. And with all humility, thank you. Team 21 on stage, members of film fraternity, cast and crew of team movie 21, brother officers, JSOs, बहादुर जवान, आर्मी पब्लिक स्कूल से आए हुए बच्चे, फैमिलीज, मेंबर्स ऑफ मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रेलर देख के मुझे फील आया है, एक बहुत ही अव्वल दर्जे से जो टीम 21 है उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया। ये क्षण हम सब के लिए काफी गौरव, फक्र और कुछ हद तक भावुक क्षण भी है, क्योंकि आज 21 मूवी एक ऐसे योद्धा के ऊपर बनाई गई है जिसकी स्टोरी सुनते हुए हम लोग बड़े हुए, और जाति तौर पर मेरा उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट यूं बनता है कि जब 1985 में मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी तो मुझे फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन में दाखिला मिला, और हमारे स्क्वाड्रन की लॉबी में जब हमने एंट्री किया तो सबसे पहले राइट में
सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का पोर्ट्रेट और उनकी पूरी जो स्टोरी है वो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो पूरी स्क्वाड्रन हमेशा दिन रात अरुण खेत्रपाल को देखते हुए हम लोगों ने ट्रेनिंग की। 67 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। 67 में अरुण खेत्रपाल ने इंडियन अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किया। आपको सबको मालूम है कि इतनी कम उम्र में एक हर सोल्जर का ख्वाहिश होता है कि देश के लिए जो भी टास्क मिले उसमें अव्वल दर्जे से उतरे। और ये जायज बात है कि कोई भी अपनी विक्ट्री को जान गंवा कर नहीं लेना चाहता, दुश्मन की जान लेकर हासिल करें विक्ट्री, वो है। लेकिन अगर इस मिशन और इस मुहिम में हमारे को अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें उसके ऊपर फक्र होता है। तो 21 साल की उम्र में अरुण खेत्रपाल ने शायद वो काम किया जो हम लंबी लंबी उम्र करके नहीं कर पाते। जैसा आपने देखा होगा ट्रेलर में, उनकी मदर ने उनको कहा जब वो जा रहे थे कि शेर के जैसे लड़ना। और ये बिल्कुल सच है कि अरुण खेत्रपाल एक योद्धा की जिंदगी जिए, शेर के जैसे लड़े और एक इतिहास बनकर अमर हो गए। तो ऐसे योद्धा को अगर इस मूवी के जरिए इन्होंने डिसाइड किया है कि इसको भारत में सभी जगह में इसको इसके बारे में बताएंगे मूवी के जरिए, तो ये सब हमको फख्र की बात है कि इंडियन आर्मी की जो वैलर की ट्रेडिशन है, जो चाहे 1948 ऑपरेशंस हो, 62 ऑपरेशंस हो, 71 की लड़ाई हो जिसमें ये वाकया हुआ, या उसके बाद ऑपरेशंस हो, कारगिल का युद्ध हो, या पराक्रम हो, या हाल का ऑप सिंदूर, भारतीय सेना हमेशा अपना टास्क बखूबी पूरी बहादुरी और सोच समझ के करती रही है और देश को हमेशा हमारी सेना के ऊपर इस वजह से फख्र रहा है। ये जो एक सोल्जर की कहानी है, मैं चाहूंगा कि हम सब इसको अपने मुआयने से देखें और इससे प्रेरित हों। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इन्होंने सिनेमेटोग्राफी करी है, ये फिल्म, मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने पेश आएगी। अभी मैं यहाँ पर जो मौजूद स्टेज पर टीम 21 के जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्ट and all the crew members and team members who are there, I can only wish them all the best, my best compliments, and a big thank you for producing this wonderful, marvelous piece of movie. Wish you all the best. May you all have great success and great glory. Thank you. Jai Hind. Main thing that stood out for me about this story is about how young Arun Khetrapal is, and I would like to address the young kids sitting over there who've come from school. आई होप कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो शायद आप कुछ सीख पाएंगे अरुण खेत्रपाल से। वो बहुत ही वीर, बहादुर और पैशनेट सोल्जर थे। एंड आई थिंक दैट इफ वी टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस फिल्म इज दैट यू आर नेवर टू यंग टू चेंज द वर्ल्ड। सो दिस इज मेनली फॉर द यंगर पीपल आउट हियर, एंड माई इमेंस प्राइड एंड ग्रैटिट्यूड टू एवरी सोल्जर, एवरी पर्सन अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, खास करके आमड को, क्योंकि आई स्पेंड टू मच टाइम विद देम, तो वो थोड़ा रिलेशनशिप बन चुका है। Before I end, I would just like to say Ranveer Jai Sada, that's from our regiment Pune Horse. I say mine because it feels like mine, sir. Wow. And Jai Hind, thank you so much. कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि शायद यहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक फेल्ड एसएसबी एक्टर आपके सामने खड़ा है, दो बार एसएसबी फेल हो गए, जिसको लगा था कि वो बहुत अच्छा ऑफिसर बनेगा, बट नहीं हो पाया। फौज ने वापस घर भेज दिया। हर बार एक चेस नंबर बोल देते थे, 2 चेस नंबर बोल देते थे, और उसके बाद कुछ जवाब ही नहीं देते थे कि क्या हुआ, गलत क्या किया मैंने। जस्ट कम्स चेस नंबर 4, चेस नंबर 13, रेस्ट ऑफ यू कैन गो आउट। सो आई हैव बीन दैट स्टेज। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन इंडियन आर्मी। So by association with भारतीय सेना और
the uniform, the stars, everyone. So it's so emotional for me. My first introduction to Khetarpal was when my school friend, he was passing out from IMA. So the peeping ceremony where it goes, the caps in the air, the big name is there, the Khetarpal Auditorium. So I asked him, and that's such a huge name written on an auditorium. And he said, this is about Second Lieutenant Arun Khetarpal, the youngest Paramveer Chakra. And I got goosebumps that day also. Years after, this gentleman, this amazing human being, Shriram Raghavan, offered me this film, and he said the film is about Arun Khetarpal. I got the same goosebumps after 25 years. And it is an amazing, amazing journey. आपकी तरह भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका नहीं मिला, बट थोड़ा बहुत योगदान हम दे देंगे आपको आप ही की कहानी बताने में. और ये बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई फिल्म. कभी ये सोच नहीं पाते हम इन सिविलियंस की हर लाइफ में कि एक 21 साल के लड़के में इतना जज्बा, इतनी बहादुरी, इतनी निडरता कैसे होती है, क्योंकि most of the people in 21 they are just struggling in life कि करना क्या है जीवन में यही नहीं पता है. So sorry, I really get emotional every time I meet you guys, and I'm literally jealous of you also sometimes, like very, very jealous when I see all the officers. And I remember I'm saying, I'm blabbering because sorry General Kushwa, the worst or the most difficult days in my life, I was shooting a film called Vishwarupam in Chennai, and got packed up coming back home to Bombay. और मेरी किस्मत बुरी कि उससे एक दिन पहले OTA में पासिंग आउट परेड हुई थी. एयरपोर्ट पे इतने गंजे दिखाई दिए मुझे, मेरा खून जल के राख हो रहा था उनको देख देख के कि यार मैं होता यहाँ, पर मैं नहीं था. आई एम जस्ट गिविंग माय मेमोरीज विद इंडियन आर्मी, एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन भारतीय सेना. हमेशा श्योर करता जब भी मैं किसी को फौज की यूनिफॉर्म में देखता हूँ, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम. 18-19 years old boy who just wanted to be in Indian Army officer. That's it. So thank you for having us, and it's an honor to be in between you guys. यहाँ पर बस आप सबके सामने खड़े होके बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है. हर इंसान जो एक सोल्जर की लाइफ में है, जो उसके नज़दीक हैं, एक इनविजिबल यूनिफॉर्म पहनता है. और बस हिम्मत का जो जितनी ब्रेवरी उस चीज़ में है, मुझे लगता है वो एक सोल्जर की खुद की लाइफ में झलकता है. तो आई वुड जस्ट से कि स्टैंडिंग हियर आप सबके सामने, जस्ट cheers for all the women, all the family members in a soldier's life. Thank you for even your bravery. Who he was, what he was made of was really shown. तो जब हम एक्शन शूट कर रहे थे तो तब शायद थोड़ा बहुत समझ आया कि what are the stakes at which you're fighting. I think people don't really understand the scale of tank warfare and the pressure that a soldier would go through. It is so difficult, it's so claustrophobic being inside a tank. To have clarity, to have courage is very hard to find in those moments. At least for me, I know I'm not close to an army officer, but it was very difficult being inside that tank. And I think that huge respect to Arun Khetarpal for being so decisive in those moments. एक तो बहुत ही फिजिकल सीख ये मिली कि जब भी आप टैंक में चढ़ते हो आपका खून मांगता है. पता नहीं क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ कि टैंक पे चढ़ने उतरने में कहीं ना कोई हाथ पैर ना छिला हो. It always happened. During the training also we were just getting to used to the tanks. और हमारे पास सेंचुरियन था नहीं, मतलब इस जो हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे पास बाकी टैंक्स थे, हम अर्जुन को देख रहे थे और बाकी जो भी टैंक्स हमारे पास अभी T-72 T-90 सब में देख रहे थे. एवरी टाइम यू गो अप ऑन अ टैंक, गो इनसाइड एंड कम्स आउट, कहीं ना कोई आपका शरीर का हिस्सा छिला होता है, कटा होता है. दैट्स अ वेरी फिजिकल थिंग टू हैपन. Second, the role I am playing is not just, see, the film is about, of course, Arun Khetarpal and the journey of Arun Khetarpal, but the story is not just the war of 1917. It is after that also, and it touches the emotion behind a war. There are human beings in tanks. There are families who are waiting for them to come back.
So the story is very interesting in that sense, and I realized it is so difficult to be in that space of uncertainty that what will happen in the war. और जो लोग छूट गए हैं उस वॉर में रह गए हैं और जो लोग वापस घर आए हैं उनके लिए भी वो उतनी बड़ी जंग रह जाती है जो वहां शहीद हुए हैं. तो ये पढ़ते वक्त बहुत फील होता था. From the film is the only recorded line of Arun Khetrapal, something we all refer to. It's a line of strength, so I'll just say it. No, sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these so-and-sos. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.